again I am telling the definition. So computer is an electronic device which takes the input from the user and gives the output to the user in a very faster way with errorless result. Okay, and with very minimal error you can tell, but yes, you cannot tell that 100% errorless. Maybe 0.00001% error may be occur, but not more than that. So as I told, computer जो हम लोग suddenly दिखने के लिए this is the computer, but actually that is not true. These parts are called hardware, HARDWARE, hardware. So ये hardware इसको बोलते हैं. Okay, so hardware मतलब क्या है ना, जो चीज को आप दिख पा रहा है, टच कर पा रहा है, आपका हाथ को फीलिंग से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द हार्डवेयर. हाथ को टच करने में हार्ड लगता है, हाथ को टच करने में हार्ड लगना चीज को हार्डवेयर बोलेंगे. ओके, सो जो चीज को आप टच कर पाते हैं और उसको दिख पाते हैं, टच करने में फील कर पाते हैं कि यस इट इज ए सब्सटेंस, देन यू कैन टेल इट्स ए हार्डवेयर. बट इफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट देयर इनसाइड दिस hardware, then we cannot tell it as a computer. Okay, तो कंप्यूटर का ये CPU बोल सकते, this is CPU. So if I write something that CPU, okay, this is CPU, then this is monitor, then this is called a keyboard, then this is called a mouse. Sometimes we may use some printer. Okay, maybe it is some printer. So we may need some printer to printing something. So printer. Okay. So it will print something. So if I want to print anything, then ये मेरे को CPU से एक वायर जाएगा प्रिंटर तक. मैंने सिस्टम को बोलूंगा इसको कोई डेटा को प्रिंट करने के लिए. So it will print. सो जहां पे डेटा दिखता है, निकलता है, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस. ये प्रिंटर से डेटा निकलता है, मतलब आपका कागज फॉर्मेट में डेटा निकलता है, मॉनिटर में डेटा दिखता है, उसको हम लोग पढ़ के सोचते हैं. बट कीबोर्ड से डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, माउस का क्लिक के माध्यम में हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, और ये दोनों इधर इनपुट डिवाइस और ये दोनों इधर आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस. सो कीबोर्ड इज द बेसिक इनपुट डिवाइस, मॉनिटर इज द बेसिक आउटपुट डिवाइस. उसको बोलते हैं बेसिक आउटपुट डिवाइस, इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट डिवाइस. कभी कभी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस and standard output device. These are the two input device and output device must be there in your system to interact with the system. If monitor is not there, then obviously you cannot think that you have given a right input or not. So your monitor will help you to recognize your input and display your output. Okay, so basically monitor output के लिए है, but यहाँ पे आप कीबोर्ड से टाइप करते हो, मॉनिटर में दिखता है, आपको लगता है कि मैंने कुछ इनपुट दिया, बट once you will give the input, you will get the output from the monitor. So monitor is the standard or basic output device, keyboard is the standard or basic input device. Clear? Then printer is a additional output device, mouse is a additional input device. Like this आपका speaker भी output device होता है, because वहां से आपको sound सुनाई जाता है, that is again secondary output device. एंड आपका जो माइक होता है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस, माइक जिसमें आप बोलते हैं, आपका रिसीवर आप जो बोलते हो. सो दीज आर द बेसिक एंड स्टैंडर्ड मॉनिटर एंड कीबोर्ड आर बेसिक और स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, बट माउस, प्रिंटर, स्पीकर, माइक, they are the secondary devices. And the most important part is called CPU. Inside the CPU there are many things. Okay, inside the CPU, if I will dissect that CPU, then there are many things. तो मैंने यहाँ पे many things को थोड़ा बोल देता हूँ क्या क्या है. तो very important thing is a very important thing is the part of CPU I am telling. What are the things? One is a processor.
तो मैं पूरा सीक्वेंस से ले आ रहा हूँ. वन इज RAM. RAM is one device, okay, inside the CPU. Motherboard. जो इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, okay, मैंने इम्पोर्टेंट का बात कर रहा हूँ. These are motherboard. One is motherboard. Another RAM. RAM मतलब वो RAM नहीं है भाई, पीने वाला RAM नहीं है. वो राम स्पेलिंग ROM है या RUM है पता नहीं मुझे, बट मैंने कभी राम नहीं पिया हूं. तो राम है. ओके, दिस इज द राम. इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं. यहाँ पे मदरबोर्ड होता है. देन मदरबोर्ड के ऊपर हम लोग का बहुत सारी चीजों रहता है. वन इज रैम रहता है, प्रोसेसर रहता है, हार्ड डिस्क रहता है. ओके, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस मदरबोर्ड के ऊपर रहेगा. ओके, तो अगर सीपीयू को हम लोग खोलेंगे, उसके अंदर इतने सारी सामान और इतने सारी हार्डवेयर अगेन रहता है. तो क्या काम है इसका, सब मैंने धीरे धीरे बताऊंगा. तो ये रॉम का क्या काम है? मदरबोर्ड पे ये रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, देन सम नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क कार्ड बोलते हैं उसको. तो यहाँ पे नेटवर्क NW कार्ड, नेटवर्क कार्ड बोलते हैं. प्लस सम स्विचेस रहता है उसके अंदर, वायर्स रहते हैं, बहुत सारी चीजों अंदर रहता है. ओके, तो ये दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आर शुड बी इन द सीपीयू. RAM मतलब रीड ओनली मेमोरी. मदरबोर्ड बोले तो क्या है कि जो बोर्ड के ऊपर ये सारे डिवाइस कंट्रोल होते हैं. रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप बोलते हैं मेन मेमोरी. आप जब भी कोई मोबाइल खरीदते हैं उसमें बोलते हैं कि इसका रैम कितना है, मतलब कौन उसका जो मेमोरी है, जो मेमोरी, उसको मेन मेमोरी बोलते हैं. जो मेमोरी के ऊपर प्रोसेसर कोई भी डेटा को प्रोसेस करता है वो होता है आपका रैम. चाहे ये मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका सर्वर हो, कुछ भी हो. तो ये रैम के अंदर, RAM is the main memory. RAM is the random access memory in which all the data is going to be processed. Whatever order, whatever input you are going to give to the system, they all are going to be processed by the processor staying in the RAM. RAM is the main memory. RAM को main memory बोलते हैं. Hard disk. Hard disk is nothing but it is a device in which all the things that you want to store permanently, even your system is stopped, system is not functioning, that time also the data is going to be captured, or data is going to be get from the hard disk. अगर हार्ड डिस्क पे आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. once your system is being shut down, that time your RAM is going to delete all the things inside from it. रैम में जितना डेटा रहता है सारे डेटा डिलीट हो जाता है जब सिस्टम शट डाउन हो जाता है. जो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टोर सम डेटा परमानेंटली, देन यू विल चूज दिस हार्ड डिस्क. आपको चूज करना जरूरत नहीं है. दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ हार्ड डिस्क. व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज द एनी फाइल, at that time it will ask you, do you want to save it or not? If you will tell yes, then it is going to be stored in hard disk. When you are saving any type of file, when you are saving any type of folder, that time that particular files or folders are going to be stored inside the hard disk. Okay, then नेटवर्क कार्ड. सो कभी भी कोई तुम अभी google.com को ब्राउज कर पा रहा है, अगर आपके पास नेटवर्क कार्ड नहीं है तो आपका सिस्टम को आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो दीज आर द डिवाइसेस शुड बी देयर टू मेक योर कंप्यूटर. बट अगेन इफ दिस विल बी देयर एंड सॉफ्टवेयर इज नॉट देयर, देन दिस इज जस्ट ए हार्डवेयर, दिस इज जस्ट ए खिलौना. ओके, आपका बच्चे के लिए खिलौना के साथ समान हो जाएगा. इसको सीपी को लेके इसके सर पे पिटोगे तो उसका सर फट जाएगा. कीबोर्ड को लेके उसका मुंह में मारोगे तो मर्डर हो जाएगा. माउस को किसको पत्थर के हिसाब से उसका दिमाग में फेंकोगे ना, उसका जो दिमाग दही हिल जाएगा, ऐसे होगा. बट क्या है कि दिस इज हार्डवेयर.
all this hardware will just work for मतलब बच्चे का खिलौना, किसी बच्चे का खिलौने का सिवा और कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये हो जाता है आपका हार्डवेयर। बट इफ यू आर नॉट हैविंग योर सॉफ्टवेयर इनसाइड दिस सीपीयू और in this computer, then this hardware is not going to help you as a computer. So for that, what is required? You need software. Okay, software. Software is like, suppose मैंने आप पैदा हुए, आप अभी क्या किया ना, सिंपली छोटे बच्चे के हिसाब से आप पैदा हुए, तो आप हार्डवेयर बन के पैदा हुए हैं। जब तक आपका दिमाग में एक एक चीज को नहीं डालोगे, अगर 10 साल तक आपको एक रूम पे बंदी कर दिया जाएगा, अगेन आपको 10 साल के निकाल दिया जाएगा, तो आप सिंपली हार्डवेयर होके बन जाओगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, खाओगे या पियोगे या क्या करना है क्या नहीं। अगर बच जाओगे तो वो टाइम में आप पागल जैसा दिखोगे और कुछ नहीं। आपका बाल बढ़ गया होगा, आपका मुंह काला पड़ के रहा होगा, सो आप कुछ भी समझ नहीं पाते होंगे। आपको कोई एक्स बोलता तो आप क्या ऐसा उसको मुंह के देखोगे, दैट इज जस्ट यू आर ए हार्डवेयर। तो देन 10 साल के बाद निकाल के आपको एक एक चीज सिखाई दिया जाएगा कि इसको खाना बोलते हैं, इसको पीना बोलते हैं, इसको मैंगो बोलते हैं, इस टाइप का सेंटेंस बोलने में तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा एक्स वाई जेड। जब आप उसको बोलते हैं, देन दिस इज नथिंग बट आपका दिमाग को कुछ एजुकेट कर दिया जा रहा है। आपका दिमाग को जब एजुकेट कर दिया जा रहा है, आपका दिमाग हर एक चीज को लिए हर एक चीज को याद रखता है, फिर उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है, देन आप एक कंप्लीट आदमी बन जाते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे कंप्यूटर पे हम लोग जब तक सॉफ्टवेयर नहीं रखे हैं तब तक एक कंप्यूटर को सिंपली हार्डवेयर बोलेंगे। सो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर। देन सॉफ्टवेयर का बहुत ही टाइप होता है। तो मैंने एक एग्जांपल देख के बोला कि जैसे कि आपका मोबाइल पे बोलते हैं कि एंड्रॉयड ओएस, मतलब आपका जो मोबाइल जैसे एमआई वगैरह मोबाइल लेते हैं वहां पे एंड्रॉयड ओएस रहता है। अगर आप कोई एप्पल का मोबाइल लोगे वहां पे आईओएस रहता है, राइट। अगर एक बीच में विंडोज मोबाइल भी आया था नोकिया का, वो विंडोज मतलब उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था। So like this, there are different types of operating systems. Then once your Android OS is there, you are going to install that Google Pay, you are going to install that Google Chrome, you are going to install that PhonePe, then DigiLocker, then App Store, then World Clock, then anything, Teams, bagera bagera, right? So every time, whatever things you are needing, that time you are just installing one software in your mobile. देन आपका मोबाइल को आप मल्टीपर्पज में यूज कर पाते हैं, राइट। सो सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है, अगेन आपका मोबाइल सिंपली पत्थर जैसा काम देगा। किसी का सर पे लेके पीट दोगे, उसका सर फट जाएगा और मर जाएगा, उतने वही काम में यूज हो सकता है आपका मोबाइल। तो मोबाइल को अगर आपका यूजफुलनेस करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर भरना पड़ेगा। बट सारे सॉफ्टवेयर तो भरूंगा, बट पहला सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए ना, दिस सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक नहीं है तब तक आपका कंप्यूटर फंक्शनल नहीं होगा, आपका कंप्यूटर सिंपली हार्डवेयर होकर रहेगा। अच्छा, खाली अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दिया, इज इट गोइंग टू हेल्प मी इन ऑल द एस्पेक्ट? अगर मेरे को यही सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैंने ओएस डाल दिया इसके अंदर, विंडोज, जैसे आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका कंप्यूटर पे, या एंड्रॉयड ओएस है आपका मोबाइल पे, इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल एस्पेक्ट? यस और नो? Anybody, please? No, sir. No, right? Because that is only that OS is going to give a life to the system.
ओएस आपका सिस्टम को लाइव किया, बट आपको क्या फायदा हुआ? मेरे को लेट से एक डॉक्यूमेंट लिखना है, तो मुझे चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, राइट और नॉट? मुझे अगर कोई हेल्प, कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है, तो मुझे चाहिए, क्या चाहिए ना, एक एक्सेल चाहिए। मुझे अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, मुझे चाहिए, क्या चाहिए ना, पावर पॉइंट चाहिए। मुझे अगर कोई गर्लफ्रेंड के साथ मोहब्बत करना है, मेरे को क्या चाहिए, टिंडर चाहिए, राइट? मेरे को किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, मेरे को क्या चाहिए, फेसबुक चाहिए। तो लाइक दिस, तो मैंने ऐप भी, राइट, फेसबुक करूं। मेरे को कुछ टिकटॉक का गाना छोड़ना है, मेरे को क्या करना पड़ा, इंस्टाग्राम। तो वगैरह वगैरह, ये सॉफ्टवेयर को मोबाइल पे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यार एप्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द एप्स, राइट? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इंस्टॉल करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंस्टाग्राम, एफबी, टिंडर, so these all softwares are called the application softwares. These softwares called are application software. OS is nothing but your system software. Understood, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So for my purpose, so my particular, मेरे को जो चाहिए उस काम OS नहीं दे पाया. OS is just for interacting with the computer through from a user. एक यूजर उनका इनपुट देगा, ओनली OS. क्या इनपुट देगा ना, मैंने एक लिखूंगा, नोटपैड वगैरह आ जाता है बाय डिफॉल्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नोटपैड आ जाता है, और पेंट आ जाता है, PAINT, पेंट एक रहता है, पेंट, ओके। देन कुछ सॉलिटायर गेम टाइप का आ जाता है। So these are the default software, default application softwares as part of operating system. जब आप कोई विंडोज डालोगे वो टाइम पे ये तीनों आ जाते हैं। But again, these three are application software which are installed automatically after the OS software is installed. So OS ये तीनों को लेके नहीं बना है। OS is something different. I will tell you what is that OS. But again, this NP, these are the some default free softwares which are coming with that OS, free. But Microsoft Word, Excel, PowerPoint, FB, Tinder, Instagram, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। WhatsApp, okay? WhatsApp, Google पे, GPay, right? फोन पे वगैरह, ये सारे चीज को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। So those which are being installed after that OS is installed, these all are called the application softwares. चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। तो पहले ये OS को थोड़ा डिसेक्ट करते हैं, व्हाट इज दैट OS इज एक्चुअली, ओके। तो अगर मैंने ऐसा ये OS किया, ये OS के अंदर एक मेन पार्ट रहता है, दैट पार्ट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द कर्नेल, ओके। तो मैंने यहाँ पे आगे जाऊंगा, बट यहाँ पे मैंने जो लिखा हूं, व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, आप क्या बोलोगे ना, these are the components. One is monitor, CPU, keyboard, mouse, printer. Then inside the CPU, RAM, motherboard, RAM, processor, hardware, hard disk and network card. These are coming under the hardware category. Then the software category, there is another agent called software. The software is of two types. One is application software, another is system software. Bas, second point complicated. What is a software and a hardware? मैंने बोल चुका हूँ what is hardware, software, right? So these are hardware, and the very first software in your system to be installed is your OS. Then other software. So these are the software. Software क्या है? Again मैं बोलूँगा software क्या है, उसका definition बोलेंगे तो hardware का definition ही बोलते थे पहले. Hardware is nothing but which can be touched, which can be seen, which can be felt by the touch of our hand. Okay, so these are called the hardwares. What is software? Software is nothing but it's the instruction sets. It is the instruction sets. Okay,
combiningly created one file. Okay, let's say मैंने कुछ ऐसा 10-12 लाइन लिख दूंगा, उसको एक फाइल बना दूंगा, then that file is nothing but a that software. So software is nothing but it's a file which contains some set of instruction to achieve a particular goal through the by using the computer or by using the hardware. इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर. ओके, देन देखो आपको डेफिनेशन बहुत मिलेगा, आप भी कर, बट मैंने अभी समझाने जैसा बोल रहा हूँ, तो यू शुड अंडरस्टैंड इन दिस वे, बट you will follow the Google to get the definition of software also. Okay, everywhere you can get. It is very basic things. So but understand purpose में बताया कि कोई एक फाइल है, उस फाइल के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन सेट लिखा होता है. कौन सा इंस्ट्रक्शन? ना कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए. यस 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 Sir, one question. यस प्लीज. Sir, what is default software? What is default software? अपना जी डिफॉल्टर सॉफ्टवेयर जी नहीं, मैं बोला डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर. बाय डिफॉल्ट कुछ डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर नहीं होता है. पहला सॉफ्टवेयर मतलब कुछ सिस्टम को अगर मैंने कंप्यूटर बोलूंगा, वहां पे मिनिमम जो रहता है दैट इज कॉल्ड ओएस. सो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कीप वन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एटलीस्ट, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट. ओके, डिफॉल्ट मतलब अपने आप. मैं बोलूंगा बाय डिफॉल्ट मुझे कुछ ना कुछ तो कुर्ता या पायजामा पहनना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को कोई कुत्ते भी भूकेंगे मेरे को, राइट. सो लाइक दिस बाय डिफॉल्ट मेरे फैन का जो एक्चुअली जो स्टेट है, स्विच दबाने में फैन एटलीस्ट 1 स्पीड में तो घूमेगा. बाय डिफॉल्ट मैं अगर कोई किक करूंगा मेरे गाड़ी को, ये गाड़ी स्टार्ट होगा. गाड़ी में बाय डिफॉल्ट का मतलब समझा? ओके. बाय डिफॉल्ट अगर मैंने एक डॉग को खरीदता हूँ, वो डॉग भूकना चाहिए. बाय डिफॉल्ट पानी का धर्म होता है ऊपर से नीचे जाना. मैं नीचे से भी ऊपर जा सकता हूं, बट उसमें मशीन लगाना पड़ेगा. बट बाय डिफॉल्ट मतलब अपना आप. ओके, तो यहाँ पे अगर तुम कंप्यूटर खरीदते बाय डिफॉल्ट द कंपनी और द शॉपकीपर विल गिव ए सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोल दिया. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल who use computer? यहाँ पे मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के तरफ से आऊंगा जब मैंने लिनक्स पढ़ाऊंगा. देखिए इधर मैंने यहाँ पे आपके लिए करके रखा हूँ सब कुछ, वो टाइम पे बताऊंगा व्हाट इज कंप्यूटर. ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कर्नल क्या है, वगैरह वगैरह. बट अभी मैं आज का जो एजेंडा खत्म करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु यूज कंप्यूटर? कंप्यूटर के यूज करने का लोग कौन कौन है, मैंने आपको एक एग्जांपल देके अगेन समझाऊंगा. चलिए, तो इसको मैंने अभी डिलीट करता हूं. लेट्स से दिस इज वन कंप्यूटर. मैं सिंपली एक सीपीयू लिख देता हूं बस. दिस इज वन कंप्यूटर. पकड़ो, ये कंप्यूटर को कौन सा लोग एक्सेस करते हैं? ये कंप्यूटर को जो रखते हैं, दिस इज, इसको पकड़ लो, इट्स ए सर्वर. सर्वर इज नथिंग बट इट्स ए सिंपल कंप्यूटर जिसको लोग एक्सेस करते हैं कुछ पाने के लिए और कुछ रखने के लिए. सर्वर इज नथिंग बट उसको कुछ ऐसा लोग रहेंगे. एक बंदा उसमें कुछ डेटा स्टोर करता है, एक बंदा उससे कुछ पाता है. तो ये बंदा ना क्या करेगा, इससे डेटा रखेगा, कुछ भी रखेगा, और ये बंदा क्या करेगा, उसको क्वेश्चन पूछेगा और आंसर पाएगा. This type of people is called IT engineers. बताता हूं, IT इंजीनियर और IT टीम, IT यूजर भी बोलते हैं कभी कभी. IT यूजर बोलना सबसे अच्छा है. IT यूजर बोले तो सपोज दिस सर्वर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर Amazon.com. means Amazon.com, everybody installed their Amazon software, Amazon application in their mobile, or if you don't have any mobile, you have a
internet cafe, you went to an internet cafe or you opened one laptop and you are just hitting like Amazon AMAZON .in जो भी हो, मैं .in करता हूँ. Now this Amazon.in application मैंने खुला, that means I am a normal user. मैंने किस लिए खुला कि मेरे को कुछ पैंट शर्ट घड़ी वगैरह ऑर्डर करना है. If I am using this Amazon.in site or application for my purchase purpose, मेरे को इधर कुछ स्टोर करना ही नहीं है. मैं रिक्वेस्ट दूंगा, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट दूंगा, मेरे को बोलूंगा पैंट, हाफ पैंट दूंगा मेरे को HALFPANT. मैंने बोला हाफ पैंट, तो हाफ पैंट फॉर मैन दूंगा. तो मैंने रिक्वेस्ट दिया है उनको. अभी देखो मेरे को सारे हाफ पैंट्स दिखा रहा है. तो आई एम गिविंग द इनपुट एज ए हाफ पैंट फॉर मैन and I am getting a output from that particular system. So now this is called a software. This Amazon.in is nothing but your web software, web software or web application through which I am getting my output. So I am a normal user. I am not bothered how this is stored, who kept this particular pant here. I am not bothered how the program is written so that everything is shown me properly, how this type of good image is coming, who was the developer of the site, how the code was written, and I am getting this type of information in this proper way. I am not bothered. I am just giving the input that मेरे को क्या चाहिए, and I am just getting the output, and I will order the things. So this is called the normal user. And who are the other users? ना ये Amazon.in एप्लीकेशन को कोई बंदा, कोई कंपनी ने बनाया पैसा खर्च करके. तो कौन सा कंपनी बनाया? दिस कंपनी नेम इज कॉल्ड Amazon कंपनी. तो Amazon कंपनी क्या किया ना, कुछ IT यूजर को रख के इस Amazon.com या Amazon.in सॉफ्टवेयर बनाया. गेटिंग? तो ये Amazon.in सॉफ्टवेयर इस सर्वर में रख के बनाया. बट ये Amazon कंपनी ने एक दो बंदे, ऐसा IT यूजर एक नहीं रहता है, उसके पास हजारों यूजर है. तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स रहते हैं. तो ये सारे IT इंजीनियर्स बोलते हैं. ये लोग कोड लिखते हैं, ये लोग डिप्लॉय करते हैं, ये लोग रेस्पॉन्सिबल होता है आपका Amazon.in को आपके सामने रखने के लिए. These are the people who are responsible for deploying or hosting the Amazon application, means developing the code, testing the code and hosting the application in the web. ये लोग होते हैं, इसको बोलते हैं IT यूजर्स. और नॉन IT यूजर कौन है या नॉर्मल यूजर कौन है ना, जो लोग खाली उसको यूज करते हैं. तो you and me all are the Amazon normal user who are just accessing their site to buying or purchasing purpose. Clear? Everybody understood my things? So these are the two types of IT engineers. Sorry, two types of users. Okay, कंप्यूटर को यूज करने वाला यही दो टाइप का होता है. अगेन IT इंजीनियर का सेग्रीगेशन बताऊंगा, बट अभी के लिए बेस द मेन यूजर रहते हैं. वन इज IT यूजर, अनदर इज नॉर्मल यूजर. क्लियर एवरीबॉडी? और ये नॉर्मल यूजर को कभी कभी मैंने एंड यूजर भी बोलूंगा. एंड यूजर. ओके, सो एंड यूजर्स आर नथिंग बट द नॉर्मल यूजर्स. अरे यस और नो, कोई तो हाँ या नहीं बोलो. ओके, चलिए. सर व्हाट इज डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर, गेट एग्जांपल. वाओ, वेरी गुड. चलिए, तो लोगों को फीडबैक मिल के मुझे खुश हो रहा है. चलिए, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस? ओके, कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. यस. सो क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस? क्या है? यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. कभी कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलेंगे, कभी कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बोलेंगे, बट एनीवे इट इज नथिंग बट योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल.
सो क्या होता है, देखो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये नॉर्मल यूजर का कुछ काम ही नहीं है और एंड यूजर का कुछ काम नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ ये आईटी यूजर्स रहते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ना जा रहा है, वी आर गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ आईटी यूजर्स। वी आर DevOps engineer, again DevOps user is a part of IT user category. तो दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, चलिए मजा आएगा। अभी कोई बंदा ने एक सेकेंड है, चलो ठीक है। तो ओके, सो क्या मैं बोल रहा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सपोज अभी आपका ये अमेजन का एग्जांपल लिया है तो ले लेते हैं, चलिए। तो अभी अमेजन कंपनी सोचा कि मेरे को ऐसा है कि दिस इज ए कंपनी, सोच लो अमेजन कंपनी है, इट्स ए बिगर कंपनी। ये कंपनी का जो भी कोई जो रेस्पॉन्सिबल है अमेजन सॉफ्टवेयर वगैरह दिखने के लिए, फॉर एग्जांपल इसको मैनेजर पकड़, इज ए मैनेजर। तो ये मैनेजर ने अमेजन कंपनी में बैठा है, उसको लगा कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि लोगों को मेरा ई कॉमर्स साइट को दिखाएगा। तो ये मैनेजर ने सोचा कि ऐसे कुछ काम मेरे को चाहिए जो कि ऐसे है कि अमेजन जो लोग मतलब ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनाएगा जो कि लोग जाके यहाँ पे amazon.in लिखेंगे तो उनको सारे प्रोडक्ट वगैरह दिखाएगा, वो प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे। ठीक, तो ये क्या किसका काम था ना, अमेजन कंपनी का मैनेजर ने ऐसे सोच के रखा। तो क्या करेगा ना, ये डिक्लेयर करेगा कि मेरे को ऐसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन मेरे को ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देगा वगैरह कुछ ऐसा डिक्लेयर करेगा। जब डिक्लेयर किया, दो चार कंपनी उसके पास आ जाते हैं। वन ऑफ द कंपनी कॉल्ड IBM, वो आया। अनदर कंपनी कॉल्ड TCS, वो भी आया, मैं बनाऊंगा। देन CTS आया, ओके। देन लेट्स से अनदर कंपनी कॉल्ड कैपजेमिनी आया, कैपजेपीपी, ओके। सो ऐसे आया। तो ऐसे लेट्स से ये 4 कंपनी ने अभी मार्केट में लीडिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, दीज आर द लीडिंग कंपनी इन द मार्केट, लेट्स से, एंड दीज कंपनीज are coming forward to this Amazon, that Amazon is, IBM is telling I will make your product, this TCS is telling I will develop your product, CTS is telling I will develop। so ये क्या करेगा, इंडिविजुअली जाके सबके साथ मीटिंग करेगा। this manager is going to have a meeting with everybody। IBM के साथ मीटिंग करेगा, क्यों नहीं होगा, IBM के साथ करेगा, ऐसे ऐसे हर एक साथ मीटिंग करता है, 1 to 1 मीटिंग करने के बाद फिर इनके साथ बात करेगा कि कौन ये मेरा काम करेगा। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि एक रास्ता का काम आता है तो बहुत सारे टेंडर आता है, मतलब रास्ता को कौन सा डेवलपर को काम देंगे। तो लाइक दिस यहाँ पे भी जब ऐसे अमेजन कंपनी का मैनेजर ने डिक्लेयर किया कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, 4 कंपनी गोइंग फॉरवर्ड आ गए। तो मैनेजर क्या करेगा, इन चारों के साथ डिस्कशन करने के बाद कुछ फाइनलाइज करेगा कि मेरे को किसके साथ जमेगा। क्या ये IBM के साथ थोड़ी कर लेगा, नो। IBM क्या करता है, फॉर एग्जांपल मेरे को IBM बोलेगा ये सॉफ्टवेयर को मैंने डेवलप करने के लिए मुझे 60 करोड़ रुपया चाहिए, 60 CR चाहिए, और ये बोल रहा है कि नहीं मैंने 50 CR में कर लूंगा। TCS बोल रहा है देखो TCS बोल रहा है मेरे को दे दो, मैंने 80 CR लूंगा, मैं 80 CR लूंगा। और
कैपजेमिनी बोल रहा है मैं 30 शेयर में कर लूंगा, 30 शेयर करोड़। क्या मैनेजर इमीडिएटली बोलेगा कैपजेमिनी मेरा काम करे? मैन कैपजेमिनी अगर 30 शेयर में कर देगा, बोला सस्ता पड़ रहा है, तो ये अमेजन कंपनी क्या कैपजेमिनी को काम दे देगा? एनीबॉडी? नहीं सर। क्यों नहीं देगा? सस्ता है, हाँ सर। यहाँ पे क्वालिटी दिखेगा, राइट? सॉरी क्यों भाई? सॉरी नहीं, देखिए दे सकता है, ओके। इसके पास क्या रिक्वायरमेंट है वो दिखना पड़ेगा। तो हो सकता है ये बस सस्ता चीज ढूंढता है, मेरे को जो भी सस्ते में देगा। देखो भगवान के लिए लोग क्या करते हैं, जाते हैं दुकान को केले के लिए, और केला 5 रुपया से शुरू होकर 1 रुपया तक केला भी रहता है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया से लेके 5 रुपया तक इंडिया में केला मिलता है। आप जाके पहुंचा, वो बोला कि अरे सर ये केला लीजिए ना, 5 रुपया, बढ़िया केला है। लोग पता है क्या करते, अरे नहीं यार मैं भगवान के लिए दूंगा, वो काला वाला केला दे दो ना, बोलते ना 1 रुपया वाला केला। तो मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है, मैं भगवान के, अरे भगवान को काला केला क्यों देने का? आफ्टर ऑल वो केला को तुम ही तो खाने वाला, क्यों भगवान को काला? तुम अच्छा वाला केला लाओ, भगवान को दिखाओ, भगवान खुश, तुम भी खुश। तो तुम काला वाला केला अगर लेके जाए, वो एक डायरेक्ट लॉस ही है। तो चलो वहां पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बट एनीवे तुमको अगर काला वाला केला लेना है तो तुम ऑब्वियसली कैपजेमिनी के पास जाओगे कि भाई मेरे को सबसे सस्ते में मिल रहा है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन आप इसको काम दे दिया। ये बंदा ने काम किया किया किया, खत्म ही नहीं हो रहा है। 2 साल चला गया, 3 साल चला गया, तब तक फ्लिपकार्ट ने उसका वेबसाइट बना के बहुत बहुत कुछ सेल कर दिया। फ्लिपकार्ट मार्केट में चला गया। क्या अभी आप कैपजेमिनी के ऊपर भरोसा करोगे? कैपजेमिनी जो टाइम में 30 करोड़ बोला था, वो बोला था सर मैंने मिनिमम 2 साल लगाऊंगा काम, और थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बट टीसीएस बोल रहा है, सर सीटीएस क्या बोल रहा है, नहीं मैंने जो काम करूंगा मैंने थोड़ा क्वालिटी के साथ करूंगा। आपको अगर मैंने 1 साल ले रहा हूं, अगर 1 साल में आपको कर नहीं पाया, एवरी मंथ आई एम गोइंग टू गिव यू द पेनल्टी चार्ज आज 10 करोड़। कौन बोला? सीटीएस बोला। सीटीएस बोला है मैंने 10 करोड़ रुपया आपको पेनल्टी दूंगा। ये होता है एक्चुअली, अगर इनका एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है ये सीटीएस के साथ, कि ठीक है तुम बोल रहे 1 साल में करने के लिए, मेरे को 1 साल में चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाया क्या करेंगे? तो सर मुझे 80 करोड़ दो ना, उसके लिए मैंने उसका रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, आपको 1 साल में करके दूंगा। बट नहीं करोगे तो क्या करोगे? नहीं 10 करोड़ फाइन दूंगा एवरी मंथ डिले। सो अभी ये ऐसा बोल दिया 80 करोड़ 10 करोड़। अभी सिटी टीसीएस बोल रहा है कि मैं आपको 50 करोड़ में दे रहा हूं क्योंकि मेरा वैल्यू अच्छा है मार्केट में। कभी मैंने ऐसा नहीं, बट मैंने ये एसएल वैसे कर नहीं सकता, तुम्हारा इच्छा है तो लो, नहीं तो नहीं। मैं आपको मेरा ट्रस्ट वैल्यू दे रहा हूँ। मेरे पास 99% प्रोडक्ट कभी फेल नहीं हुआ टाइमिंग में। आईबीएम भी वही बात बोल रहा है, बट बोल रहा है मैं थोड़ा क्वालिटी का दिखता हूँ और आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा। ये हो सकता है ये अमेज़न को ये आईबीएम और टीसीएस का डील अच्छा लगेगा, तो लेट्स से वन ऑफ द डील अच्छा लगा इसका आईबीएम से, तो अभी सब कुछ हट जाएंगे। ओनली कौन रहेगा? कौन रहेगा? आईबीएम, राइट? राइट सर। So now IBM and Amazon, these are the two company. This is IBM. Okay, this is IBM. IBM कंपनी भी बड़ा है, Amazon कंपनी भी बड़ा है। तो ये IBM का मैनेजर आ गया अभी, राइट? एक मिनट। तो यहाँ पे IBM मैनेजर एंड Amazon कंपनी, these are the two different company. One is the client, this is the client guys. Those who will pay the charge, they will treated as a client. So Amazon is nothing but it's the client, or IBM is nothing but it's called the vendor. गेटिंग में? देखिए आप जब कोई मंडप में शादी करवाते हैं, आपका कोई बच्चे जो भी हो, उनको आप मंडप को पेमेंट करते हैं, तो यू विल बिकम द क्लाइंट।
मंडप विल द वेंडर। समझा अभी? जिसको मिल रहा है ये तुमको करके देगा, मतलब ऐसे एक्चुअल नहीं बोलते ऐसे, बट मैंने नॉर्मली बोलता हूँ। तो मंडप विल बी द वेंडर, यू विल बी द क्लाइंट। बट यहाँ पे भी ऐसे होता है, मैनेजर, ये अमेजन कंपनी का मैनेजर और अमेजन कंपनी will become the client because they are paying the charge to IBM. IBM is developing the particular project. So यहाँ पे दोनों में कुछ समझौता होगा। अभी IBM कंपनी इनको बोलेगा कि मैंने तुमको ये प्रोडक्ट मेरे रिसोर्स के हिसाब से बोलता हूँ, ये प्रोडक्ट को मैंने 6 मंथ के अंदर करके दूंगा, और मेरे पास ऐसे 40 रिसोर्स है। वो 40 रिसोर्स को मैंने पूछा, और 40 रिसोर्स के साथ ऐसा मैंने 40 रिसोर्स को दिख के और इसके ऊपर भरोसा करके मैंने आपको बोल रहा हूँ, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डेवलप within 6 months and we will have these much stages. So I will tell you that these will have some stages or steps, and every step में मैंने आपको अपडेट दूंगा कि मेरा क्या क्या हुआ। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी अगर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आप इसको नहीं दोगे, ये लोग क्या कर 6 मंथ तक टेंशन में रहते हैं। गेटिंग मी? अभी देखो, आप जब भी कोई लेट्स से दिल्ली से आपका घर को आ रहा है, आपके घर पे कोई एक बंदा का तबीयत बहुत जोर से खराब है, और दिल्ली से एक आपका भाई या बहन या पापा कोई आ रहा है, तो डायरेक्टली वो एक बार फोन किया और घर पे आके पहुंचा। दिस इज वन स्ट्रैटेजी। अनदर स्ट्रैटेजी, दिल्ली से वो घर तक आने तक 6 बार आपको फोन किया कि मैंने यहाँ हूँ। आपको कौन सा स्ट्रैटेजी अच्छा लगेगा गाइस, सेकेंड वाला या पहले वाला? सेकंड वाला सर। Obviously second वाला, because you are giving your value, right? Yes, I am here, I am here, I am here. At least update पता चल रहा है। सामने वाला का पता लगा, ठीक है ये बंदे का तबीयत खराब, बट ये आ रहा है, तो अभी आ गया, कटक के पास पहुंच गया, अभी गांव के पास पहुंच गया, अभी दिल्ली एयरपोर्ट से उतरा। तो ये सारे अपडेट देने में क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा प्रोडक्ट अभी तक ये स्टेज में है और 2 स्टेप में मेरे पास पहुंच जाएगा। So these are called steps. मैंने स्टेप वाइज इंफॉर्मेशन इसको देता रहूंगा। तो यहाँ पे जो कुछ होता है, कैसे कैसे स्टेप करा जाता है, कैसे काम होता है, मैं आपको इधर बताऊंगा। यहाँ पे एक SLA भी होता है, 6 सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। इधर SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोले तो 6 मंथ में तुम अगर काम नहीं कर पाया, मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट बना के नहीं दिया, तो आपके ऊपर क्या फाइन लगेगा। मेरा 6 मंथ चला जाएगा ना, पैसा तो तुम लेगा ठीक है, बट 6 आपके ऊपर क्या फाइन लगेगा, ये सारी चीज वगैरह। फाइन का खाली बात नहीं होता है, रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन XYZ बहुत कुछ रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी लेट्स से ये इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनको प्रोडक्ट दे दिया, एक बार फाइनलाइज हुआ, उसके बाद क्या होता है ना, एक होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ओके। ये बंदा इनको रिक्वायरमेंट देता है। कभी कभी ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस इस स्टेप में भी हो जाता है, जो टाइम पे सर्विस मतलब पहले डील होता है, बट ये दिस इज अनदर स्ट्रैटेजी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ, रिक्वायरमेंट क्या है कि ये बंदा बोलेगा मेरे को, देखो मैंने आपको इधर जाता हूँ, मेरे को इधर क्या क्या मिल रहा है, एक के लॉगिन मिल रहा है, राइट, यहाँ पे जाके कहीं पे लॉगिन करते हैं, फिर कार्ट मिलता है, अकाउंट, देखो यहाँ पे योर अकाउंट करते हैं, फिर यहाँ पे जाके आपका अकाउंट का लॉगिन वगैरह मांगेगा। आपको अगर लॉगिन नहीं है, आप पहले यहाँ पे साइन अप करोगे, एक आईडी तुम्हारा बनेगा, न्यूली क्रिएट वन अकाउंट करेंगे, फिर अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको साइन इन करेंगे, फिर आपको प्रोडक्ट को इधर ढूंढेंगे। तो these are features, these are search box where you will search your product. This is the cart box where you will get the carts like so whatever your requirement, आपको समझाओगे उसको। so ये बटन बनना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बटन ऑल एक रहेगा, सेल रहेगा, बेस्ट सेलर रहेगा, इधर सर्च बॉक्स रहेगा, इधर मेरा लोगो रहेगा, तो मेरे को कार्ट रहेगा, देन ऑर्डर का मैंने रिटर्न ऑर्डर करूंगा या ऑर्डर को ट्रैक करूंगा, मैं इधर दिखूंगा, नीचे कुछ पिक्चर्स दिखेंगे अच्छे से। जब अभी दिवाली वाले आ रहे, इधर कुछ ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे मेरा जो बेस्ट ऑफर्स इधर दिखेगा, राइट। और सबसे ज्यादा
सेलेबल चीज इधर लेफ्ट साइड में दिखेगा वगैरह वगैरह। मैंने IBM कॉलेज से ये बोला, कौन बोला ना, ये तो ये जो जो रिक्वायरमेंट देता है IBM ने, वो सबको लेके दिखता है कि मेरे को सचमुच में तो उसको बोल दिया कि करके दूंगा, अभी मेरे करना है। तो पैसा अगर उसका अच्छा खासा मिल रहा है, इसके अंदर 40 रिसोर्स था बट दिखा कि थोड़ा रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये क्या उसको बोल देगा नहीं नहीं मैं इतना टाइम में नहीं कर पाऊंगा, ये क्या करेगा ना, हायर करेगा। ये 40 जगह में और 20 को हायर करेगा, क्योंकि उनको पैसा अच्छा खासा मिलने वाला है, थोड़ा काम भी ज्यादा होगा। तो ये 20 40 60 लोगों को लेके काम करना शुरू करने के हिसाब से ये अभी क्या करेगा ना, डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएगा। इसको बोलते हैं डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस खत्म होने के बाद डिजाइन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है बाय द IBM मैनेजर। IBM मैनेजर क्या करेगा, ये 60 लोगों पे कुछ टीम लीड्स वगैरह रहेगा। लेट्स से कि जावा टीम लीड में बताऊंगा जावा क्या होता है, जावा टीम लीड, और लेट्स से कि ओरेकल का टीम लीड, और एक एडमिन रखेगा जो कि काम करेंगे, और एक डेवऑप्स इंजीनियर रखेगा, सब वगैरह वगैरह लोग को ये इन 4-5 लोग के द्वारा मतलब साथ बात करके डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाता है कि हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होता है ना, डेवलपमेंट कब होगा, डेवलपमेंट टीम में कौन कौन रहेंगे, X रहेगा, Y रहेगा, Z रहेगा वगैरह वगैरह, और ये चलेगा 2 मंथ चलेगा। उसके बाद टेस्टिंग रहेगा, टेस्टिंग में लेट्स से P, अभी ये XYZ से Y रहेगा, लेट्स से Y इधर डेवलपमेंट टीम लीड। देन टेस्टिंग में और कुछ ऐसा P और Q कोई बंदा रहेगा, तो ऐसे रहेगा। उसके बाद उसको लेके एडमिन मतलब डिप्लॉयमेंट वगैरह करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर रहेंगे। सो ऐसे मल्टीपल पीपल। और टेस्टिंग कितना दिन चलेगा ना, लेट्स से ये अनदर 2 मंथ चलेगा। फिर उसको हम लोग कुछ एनवायरमेंट डालेंगे, मैं ये सारी चीज बताऊंगा अभी इधर। तो डिजाइन डॉक्यूमेंट में डिटेल्स लेता है कि डेवलपमेंट कितना दिन चलेगा, कौन सा टेक्नोलॉजी को लेकर चलेगा, कौन कौन काम करेंगे, कितना मंथ चलेगा वगैरह वगैरह। टेस्टिंग में भी वही होगा कि मैंने कौन सा टूल यूज करूंगा टेस्टिंग के लिए, मेरे को टेस्टिंग के टाइम पे क्या क्या टेस्टिंग करना। देयर आर मेनी टेस्टिंग, वन इज ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, अनदर इज कॉल्ड लोड टेस्टिंग। सो लॉट्स ऑफ टेस्टिंग मैकेनिज्म्स आर देयर। सो ये टेस्टिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट बनता है। डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या रहेगा ना, कोड को उठाएगा, उसको थोड़ा टेस्टिंग और करेगा, क्वालिटी टेस्टिंग करेगा, उसको फिर प्रोडक्शन में डालेगा, क्या कैसे कैसे करेंगे हम लोग वही चीज को स्टेप वाइज देखेंगे अभी। सो डिजाइन डॉक्यूमेंट लेट्स से बन गया। once the design document is ready, now this design document will be shared to Amazon। Amazon को दिया जाता है, उनको एक डिस्कशन होता है उनपे। ओके, तो कि हम लोग ये समझे और ऐसे ऐसे हम लोग काम करेंगे, एवरी 1 month में आपको अपडेट देंगे। This is our document in which we are going to develop this type of features। ये सब इसमें लिखा होता है। This is called the design document। Okay, clear? So ये डिजाइन डॉक्यूमेंट Yes, को क्या कर दिया जाता है ना, टीम के अंदर बांटा जाता है कि बोलते हैं कि ये डिजाइन डॉक्यूमेंट सबको फॉलो अप करना पड़ेगा। ओरेकल का टीम का क्या काम है, जावा टीम का काम है, डेवऑप्स टीम का क्या काम है, टेस्टिंग टीम का क्या काम है, सब कुछ इस डिजाइन डॉक्यूमेंट लिखा होता है, सबके साथ शेयर कर दिया जाता है। Once the design document is completed, our first step will be started। क्या होता है ना, डेवलपमेंट टीम आता है। डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट टीम आने के बाद यहाँ पे कोड डेवलप करते, डीवी कोड डेवलप करने के बाद उसको फिर क्या करा जाता है ना, टेस्टिंग करा जाता है। कोड डेवलप मतलब क्या है, कोई एक लैंग्वेज को चुनते हैं। मैंने उस दिन बोला था ना, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज वगैरह वगैरह।
कोई एक लैंग्वेज को यूज करके, जैसे कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके एक थीसिस लिखते हैं, कोई उड़िया लैंग्वेज को यूज करके कविता लिखते हैं, ओके। तुम अभी चिट्ठी देते हैं बाय व्हाट्सएप, राइट। कुछ कुछ आजकल तो चिट्ठी बिट्ठी नहीं है, आजकल इमोजी में सब कुछ चल रहा है, राइट। फ्लाइंग किस, ये वो सब फ्रेंड्स को या कोई गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को दिया दी कर रहे ना, छोटा में मोटा हो जाता है, राइट। छोटे में मोटे हो जाता है, बड़ा कुछ लिखना जरूरत नहीं है, सिंबल इज काफी, राइट। सो नाउ यू गाइज आर गिविंग लॉट्स ऑफ क्या उसको बोलते हैं, you guys are using the different types of media to express your expression, okay, to express your जो feelings। आप क्या करते हैं, कोई कोई इंग्लिश यूज करते हैं, कोई सिंपली सिंबल यूज करते हैं, कोई उड़िया लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई मराठी लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट। एंड कोई गाना यूज करते हैं, कोई कविता यूज करते हैं, कोई शायरी यूज करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ मीडिया, लॉट ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग। अच्छा, हाथी और एक हाथी को प्यार करने के लिए क्या यूज करेगा, उनका स्मेल, वो लोग कुछ मतलब स्नोरिंग टाइप का कुछ करते हैं, वो बुलाते हैं टाइगर, राइट। तो उनका भाषा भी कुछ अलग रहता है, राइट, ऐसे करते हैं ना। तो बुला उनका बेटा को बुलाने के, हाथी को कभी कोई झगड़ा मतलब कोई अटैक आता है ना, हाथी को अगर पता चलता है मेरे ऊपर कुछ ऐसा गलत होने वाला है, वो इतना जोर से रोरिंग करता है, वो टाइम पे बहुत हाथी उसके पास आ जाता है, कि हाथी लोग को पता चलता है कि अरे शायद हमारा कोई एक हाथी को भी मतलब डेंजरियस परिस्थिति है। तो हर एक चीज का डिफरेंट लैंग्वेज रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट जो करते हैं, डेवलपमेंट टाइम पे कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, देयर आर एन नंबर ऑफ लैंग्वेज आर देयर। एनी ऑफ द लैंग्वेज को यूज करके कोडिंग डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं कोडिंग। डेवलपमेंट हुआ के टाइम पे कोडिंग बोलते हैं उसको, कोई एक लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं। सो कोडिंग करने के लिए 3-4 लोग यूज करते हैं, 3-4 लोग 1000 लाइन, 2000, 3000 लाइन कोड लिखते हैं। तो कोड एक बार कंप्लीट होता है, आफ्टर दैट टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का मतलब क्या है, देखो कोई भी चीज अगर बनता है, आपका लेट से ब्रिज बना, आपका घर गांव में एक ब्रिज बना, वो ब्रिज बिना टेस्टिंग में क्या लोगों को चलने के लिए दे देंगे? नो। वहां पे एक स्टंट मैन को बुलाया जाता है, बोलता है कि देख तू ये ब्रिज के ऊपर चढ़ोगे, अगर मरोगे तेरे घर वाला को 2 करोड़ रुपया मिलेगा, तुम चढ़ोगे क्या? एक ट्रक को लेके आते हैं, वजनदार ट्रक को, उसके ऊपर आगे पीछे चलाते हैं, वो ब्रिज का स्ट्रेंथ दिखने के लिए, उसको पैसा देते हैं। तू अगर बाई चांस एक्सीडेंट हुआ है, मर गया, तेरे फैमिली को 2 करोड़ मिलेगा। ऐसे ही होता है ब्रिज टेस्टिंग के टाइम पे। तो टेस्टिंग करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को। लेट से आप एक यामा खरीदे, एक गाड़ी खरीदा, वो गाड़ी को बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं, उसको बहुत स्पीडली भगाते हैं, उसके ऊपर 4 लोग को बैठाते हैं, राइट। उसके बाद फ्यूल को मतलब फुल करते हैं तो क्या होता है, फ्यूल को कम देते तो क्या होता है, उसके बाद उनका कांटा जो चलता है या नहीं चलता है, वगैरह वगैरह, इन टाइप ऑफ टेस्टिंग करना पड़ता है। लाइक दिस, एक सॉफ्टवेयर बनने के बाद ऐसे हर एक जगह में, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड लिखते हैं हम लोग सर्च करने के लिए, यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है नहीं, यहाँ पे कार्ट में क्लिक करते हैं, कार्टिंग मतलब यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर हो रहा है नहीं, ऑर्डर कर दिया कोई चीज, ऑर्डर जो प्लेस कर चुका वो दिख रहा है नहीं, सब कुछ को टेस्ट करने के लिए उसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। तो एक बार फंक्शनल टेस्टिंग होता है, मतलब मेरे सारे फंक्शन पहले काम कर रहा है नहीं, उसके बाद बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, वन इज फंक्शनल, देन फंक्शनल के बाद होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है बताओ? अभी बताओ, मेरे को गाड़ी चल रहा है, बट गाड़ी साला 2 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है, तो क्या मैंने वो गाड़ी को पास करूंगा? चल रहा है, क्योंकि फंक्शनैलिटी वाइज गाड़ी इज ओके, बट मैं जितना जोर भी भगा रहा हूँ वो 2 किलोमीटर से आगे भाग ही नहीं रहा है, जा रहा है, बीच में मुझे हिचकिच करता है, मेरे को जर्किंग आता है, गाड़ी झक 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 होता है गाड़ी। कभी मैंने उसको हॉर्न बजाता हूँ, कभी बहुत स्पीडली मतलब बहुत लाउडली बजता है, कभी बहुत स्लोली बजता है। तो उस टाइम में इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कि मेरा गाड़ी बहुत स्पीडली जा पा रहा है नहीं, अगर जा रहा है, मैंने अगर एक ही मतलब 1 गियर में चला रहा हूँ, मेरा कितना पेट्रोल जल रहा है, 2 गियर में चला रहा हूँ कितना पेट्रोल जल रहा है, स्पीडली जा रहा है नहीं, मैंने अगर 4 स्पीड में ले रहा हूँ, मेरे को पेट्रोल ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है। सो इसको, इस सारे चीज को बोलते हैं परफॉर्मेंस, मतलब कम समय पे ज्यादा स्पीड, कम पैसा में ज्यादा माइलेज, ये सारे चीज को बोलते हैं परफॉर्मेंस। गेटिंग मी और नॉट?
हेलो, यस सर। Yes, sir. एक बार परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद लोड टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर में कैसे होता है कि परफॉर्मेंस ना, मैंने यहाँ पे बटन दबा दिया, amazon.in ऐसे दबा दिया, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, मेरे को आ ही नहीं रहा है, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। पहले जमाना में ऐसे होता था। तो अभी देखो यहाँ पे amazon.in मारा, फटाक, राइट। तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आ रहा है। दैट मीन्स हाउ सून ए पर्टिकुलर यूजर इज गेटिंग द आउटपुट as soon as he is giving the input दिया, झटका में आउटपुट आया, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस फास्टर। तो इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया। उसके बाद लोड टेस्टिंग। अच्छा, ये लोड टेस्टिंग क्या होता है? Even if 1 lakh employees, sorry, 1 lakh end users are joined to this particular software, still it is not hampering its performance. लाखों 10 लाख लोग अभी बोल रहा हूँ, अभी कितना बजा, 7 बज गया, सॉरी 8:47 पे मिनिमम 10 लाख लोग इसी amazon.in को एक्सेस करते होंगे। स्टिल देखो, मैंने अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे को घूम रहा है क्या? मेरे को फास्टर दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब है 1000 लोड, लाखों लोड, 10 लाख लोड देने के बाद भी मेरा सिस्टम सेम परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको बोलते हैं लोड टेस्टिंग। देयर आर एन नंबर ऑफ टेस्टिंग होता है। उसके बाद क्वालिटी टेस्टिंग। क्वालिटी टेस्टिंग क्या है? एक बंदा आया, सीधा बोला कि आया मैं मतलब मैंने एक यूजर हूं, मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं, तो 11 डिजिट मोबाइल नंबर दे दिया, फिर भी ले लिया। 11 डिजिट का कोई मोबाइल नंबर इंडिया में है क्या? बिकॉज ये .in है, मतलब इंडियन है, इंडियन साइट। तो यहाँ पे मैंने 11 डिजिट वाला नंबर लगाया, वो फिर भी एक्सेप्ट कर दिया। इज इट ट्रू? इज इट फाइन? नो, राइट? यस और नो? एक यूजर ऑलरेडी रामा नाम में है, मैंने अनदर यूजर बना रहा रामा नाम में, विल इट एक्सेप्ट? शुड इट एक्सेप्ट? No, sir. तो ये सबको बोलते हैं क्वालिटी टेस्टिंग। मैंने एक ऑलरेडी एक यूजर है, मैंने अनदर यूजर बना रहा हूं, इसको मना कर रहा है, दैट मीन्स प्रॉपरली एवरी टाइम इट इज वैलिडेटिंग दैट ईच टाइप ऑफ डेटा। एक प्रोडक्ट वर्क फ्रॉम होम एसेंशियल ऐसा करके एक लिखा है, क्या मैंने अनदर कैटेगरी बना सकता हूँ वर्क फ्रॉम होम एसेंशियल्स? नो। तो ये सबको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटी टेस्टिंग। ओके, सो मैंने इस टाइप ऑफ टेस्टिंग कर दिया। तो वंस दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज कंप्लीटेड, डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? मैंने दो यहाँ पे 2 स्टेप, अनदर स्टेप करता हूँ। डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, उसके बाद क्वालिटी टेस्टिंग। एक्चुअली ये टेस्टिंग के पार्ट नहीं होता है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। उसके बाद क्या करते हैं, कंपनी अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में फापी है, तो मेरे को जो चाहिए था, मतलब हमको जो चाहिए था, ये जो IBM को, ये तब तक IBM लोग करते हैं। अभी एक बार इनका टेस्टिंग वेस्टिंग खत्म हुआ, ये एक बार क्या करते हैं, इन लोगों के द्वारा टेस्टिंग करवाते हैं। ओके, इसको बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये लोग हमारे लिए यूजर है अभी। ओके, ये यूजर मतलब ये लोग हमको काम दिए थे, तो हम लोग उनको बोलेंगे हेलो, हम लोग ऐसे डेवलप कर चुके हैं, हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हुआ है, कैन यू प्लीज टेल सम पीपल फ्रॉम यू सो दैट दिस पीपल विल टेस्ट आवर प्रोडक्ट्स। सो वो टाइम पे वो लोग टेस्टिंग करके ये लोग यूजर एक्सेप्टेंस, UAT बोलते हैं उसको, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये लोग टेस्टिंग करने के बाद बोलेंगे यस, हमारा तुम लोग जो बनाए सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो ये लोग देते हैं कि हाँ, मतलब गो अहेड। ये लोग अगर सही नहीं, ये लोग अगेन बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसे कोड तुम जो बनाया कुछ अलग, मतलब कुछ लेकुना है, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारा कोडिंग में, और डेवलप करो। फिर ये लोग अगेन उसको डेवलप करो। तो इसको बोलते हैं UAT। दिस इज अनदर स्टेप। तो वंस UAT इज कंप्लीटेड, देन आएगा कोड को
कोड रिपोजिटोरी, उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट रिपोजिटोरी। सो बीच में डेवलपमेंट के टाइम पे एक रिपोजिटोरी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड गिटहब। वहां पे कोड रिपोजिटोरी बोलते हैं, बट मैंने इतना डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, जब हम लोग डेवॉप्स पढ़ेंगे जाऊंगा, बट यहाँ पे बता रहा हूँ क्या क्या। तो कोड को जब अभी यूएटी खत्म हो गया, इसको लेके कंपनी एक जगह में रखता है आज रिलीज करके, रिलीज 1 करके इसको एक आर्टिफैक्ट में रखता है। क्यों रखता है ना, बाई चांस फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता है, वो कोड वर्ड किसी के द्वारा गलत हो गया तो एटलीस्ट 1 कॉपी वो लोग सेव करके रख देते हैं। कभी कभी इसको बाद में यूज करने के लिए रखते हैं, बट ऐसा सोचो कि आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी करके एक स्टेप है जहां पर ये आईबीएम कंपनी ने उसको कोडिंग को बना के रखा। वंस इट्स कंप्लीटेड, नाउ इसको लेके होस्टिंग करते हैं। होस्टिंग को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, बट ये डिप्लॉयमेंट जो होता है होस्टिंग इन प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। व्हाट इज दिस प्री प्रोडक्शन ना, Amazon.com यहाँ पे जो है ना दिख रहा है, ये हमारा एंड यूजर के पास पहुंच चुका है ऑलरेडी। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। Amazon.in को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये प्री प्रोडक्ट क्या होता है ना, लाइक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जैसा कुछ एक एनवायरनमेंट रहेगा, जिस एनवायरनमेंट पे ये बहुत लोगों, मतलब आईबीएम का 100 लोगों, ये अमेज़न कंपनी का और 200 लोग को लेके ये लोग और थोड़ा टेस्टिंग करवाते हैं कि कहीं पे कुछ फ्लॉ आ गया क्या, कुछ भी इशू हो रहा है क्या। 1-2 महीने तक ऐसे एप्लीकेशन को लॉन्च करके छोड़ देंगे, 1-2 महीने तक सारे उनका आईटी इंजीनियर को यूज लगा देंगे काम में। या कोई कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, कोई XYZ कंपनी को बोल देते हैं तुम लोग सब जितने टाइप ऑफ चीजों ऑर्डर करना है करो, ये करो वो करो, टेस्टिंग करो, उसको कुछ भी लैकुना है तो दे दो। दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, प्री प्रोड एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसको समझा क्या सब लोग, मैं जो लाइन बोला, इट इज नॉट प्रोडक्शन बट लाइक प्रोडक्शन। क्या किया ना, अमेज़न कंपनी ने किसी लोगों को दे दिया, इनसे लेके, या आईबीएम को कभी कभी बोलता है तुम लोग जुगाड़ कर लो, तो ये क्या करता है, कोई XYZ कंपनी को हायर करता है जो कि स्मॉल कंपनी, बहुत ही सस्ते में काम करने वाला, उन लोगों को बोल दिया कि तुम ऐसे लाखों बार उसको हिट करो, इस टाइप को। वहां पे 1000 चीजों को, प्रोडक्ट को जस्ट मतलब एक्सेस करो, उसमें तुम 50 चीजों को खरीद लो, वगैरह वगैरह। तो ये उस टाइप का चीजों को क्या बोलते हैं ना, प्री प्रोड एनवायरनमेंट बोलते हैं। फाइनली जब प्री प्रोड एनवायरनमेंट में सब कुछ सही हो जाता है, यहाँ पे भी बहुत कुछ इशू आता है, तो ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि नहीं ये इशू वगैरह। तो अगेन लोग इशू रिजॉल्व करने के बाद फाइनली क्या होता है ना, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, दिस इज नथिंग बट योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट गाइस। हियर Amazon.com या Flipkart.com वगैरह वगैरह, these are the production environment where the end users are directly reaching to purchase something, to order something वगैरह वगैरह। रेडी में? सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। एक बार प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं ना, इधर लोड बैलेंसिंग लगता है। अरे भाई, जो एक ही सर्वर था, उसमें पहले 10,000 लोग एक्सेस कर रहे थे, कल 10 लाख लोग बढ़ गए। पॉपुलैरिटी, फ्लिपकार्ट का पॉपुलैरिटी के लिए 10 लाख लोग बढ़ गए। क्या एक ही सर्वर उधर काम करेगा क्या? No, sir. No, sir. तो वहां पे 10 सर्वर को 10 जगह में रख देंगे, एरिया वाइज। दिल्ली में एक सर्वर रख देंगे, उड़ीसा में एक सर्वर रख देंगे, देखेंगे जहां जहां से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है वहां भुवनेश्वर में एक सर्वर, दिल्ली में एक सर्वर, मुंबई में एक, बैंगलोर में एक, पुणे में एक सर्वर रख देंगे। तो दैट सर्वर इज, दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड द लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। concept is called high availability. So ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको
मैंने आज इसलिए बता रहा हूँ, बीच में मैं बार बार यही सब चीज बताने वाला हूँ। सो फिर वो टाइम में समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। दैट इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी। मैंने प्रोडक्ट को जो जो मैंने डेवलप करूंगा, प्रोडक्शन को जो टाइम पे मैंने एनवायरनमेंट में डालूंगा, वो टाइम में ऐसे नहीं डालूंगा, ये टाइम पे मैं हाई अवेलेबिलिटी को भी ध्यान दूंगा। सो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मतलब वहां पे सब कुछ दूंगा, मैंने ओनली प्रोडक्शन करके छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे मैंने 1000 सर्वर या 10 सर्वर में मैंने ये प्रोडक्शन जो amazon.in को इंस्टॉल करूंगा, तो ये सारे स्टेप्स होता है। एक बार हाई अवेलेबिलिटी हो गया, उसके बाद उसको मॉनिटर किया जाता है कि कोई सर्वर सही चल रहा है नहीं, कोई सर्वर ठीक से चल रहा है या नहीं। अगर कोई सर्वर बंद पड़ा है, वहां पे एक ही सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है, सपोज उड़ीसा का सर्वर बंद हो गया, क्या उड़ीसा का लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगा? मिलता है। उसका नियरेस्ट सर्वर जहां पे, जैसे कलकत्ता में एक सर्वर होगा, उड़ीसा का लोगो, उड़ीसा का एंड यूजर वहां पे कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारे चीज को हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। हाई अवेलेबिलिटी रखा था, बट सोचो कि कलकत्ता का सर्वर भी डाउन हो गया, उड़ीसा का सर्वर भी डाउन हो गया। अभी ये सारे लोग जब एमपी का सर्वर को कनेक्ट कर जाएंगे, एमपी के सर्वर में 10,000 लोग कनेक्ट कर रहे थे, अभी 30,000 लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका सर्वर स्लो हो गया। जब उनका सर्वर स्लो हो जाता है, फिर उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, वहां का सेल्स जो मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, एन नंबर ऑफ तकलीफ हो जाता है। तो वहां पे मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग टीम रहता है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। बट यहाँ पे प्रोडक्शन तक ना, ये प्रोडक्शन चीज अलग है, बट टिल दैट प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वन इज डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्यूए, यूएटी, प्री प्रोडक्ट। ये होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये साइकिल क्यों होते हैं ना, ये बार बार घूमता है। मतलब अगर यूएटी में कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर से जाओ डेवलपमेंट को। अगर ये होस्टिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ तो इशू हुआ, उसको फिर जाके डेवलपमेंट की तरफ से दिखता है या कोई डेवलप। सो साइकिल के साइक्लिक मैनर में ये चलता रहता है। So this is your software development life cycle. Understood guys? तो मैंने आज कहां तक बताया? 5 लाइन तक बताया, ठीक है? Yes, sir. सो आज हम लोग इतना ही करते हैं, 9 बज रहा है। It's okay to you. Understood? Those who are not in IT, those who are Yes, sir. IT, those who are in IT, like Amita or Viraja वगैरह, they may feel boring, but for मतलब for keeping all the people in a single line, I am arranging this type of prerequisite class. Okay, it's okay to all, right? Those who are IT, Yes, those sir. who are non-IT, everybody. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Amita, are you happy? If you are there, no problem. So Amita is not there. So anyway, the Sonal, are you okay? Yes, sir. Absolutely okay, sir. Absolutely okay. Very good. So everybody is okay, right? So क्या करेंगे अभी तुम लोग? अभी कल भी, अच्छा यहाँ पे नया कौन लोग है? ओनली 1-2 लोग नया है क्या? तो शाम का क्लास अच्छा है या सुबह का क्लास अच्छा है गाइस? शाम का क्लास अच्छा है। अच्छा है, सर। शाम का सबको अच्छा रहेगा। Yes, sir. 7:30 is the right time. Please guys, you join the right time. Yes, Everybody. sir. Yes, sir. Okay. तो आप लोग जिस चीज को लेके आए हैं, जो जो लोगों को, प्लीज उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि अगर तुमको क्लास करना है तो 2-3 दिन के अंदर ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो तुम लोग को ये व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डिलीट कर देंगे। Unnecessarily, these people are also going to get the links, and we are thinking that all the people will join but not joining. So management is also telling me why these people are still there, those who are not joining. So everybody please, yeah, सर एक्सक्यूज मी yeah, सर, जब फिजिकल क्लास होगा yes, ऑफलाइन क्लास, तो वो भी शाम पे रहेगा या फिर सुबह रहेगा? yes, this is a big question. तो वो टाइम पे
मेरे हिसाब से मॉर्निंग क्लास अच्छा होना चाहिए, मॉर्निंग क्लास रहना चाहिए, राइट? बिकॉज yes, लेडीज लोग के लिए भुवनेश्वर जैसा शहर में जाने आने का खतरा है. वही sir, that's why I'm asking for a morning session. Yes, we will look into this, but don't worry about that. Obviously, we are going to do the class at morning time only, that time. Okay. And you know, guys, one thing, everybody, that nowadays every company is forcing everybody to come to the office at least 3 days per week. You know. Yes, sir. So sometimes what will happen? The trainers will be available in front of you inside the premises. Sometimes the trainers will not be available inside the premises, but those who are interested to come to the office as a student, they can sit there. The direct telecast will be happened from the remote if the teacher is not coming to the premises directly. Sometimes ये भी हो सकता है, but आपका क्वेश्चन आंसर जो भी जैसे तरीका से होना है होगा. ये you guys are going to give your question in the chat, and our trainers are going to regularly check and give the answer in this मतलब voice manner. तो मैंने लास्ट को चेक करूंगा किस किस का लोग का क्या क्या क्वेश्चन था, पूछूंगा, बीच में भी कभी कभी दिख लूंगा. So it will not be a problem, because if you are not taking the industry specific trainers, then just trainer से पढ़ के आप लोग को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है. That's the reason industry specific trainer आना ही चाहिए जो लोग IT में ऑलरेडी इंजीनियर के हिसाब से काम कर रहे हैं. एंड उनके लिए खतरा क्या हो गया कि कंपनी उनको बुला रहे ऑफिस एटलीस्ट 3 days per week. समटाइम्स मैंने घर का तबीयत खराब या पापा का तबीयत खराब हो के कुछ तो बोल के मैंने आ जाऊंगा, बट नॉट ऑलवेज. सो बिकॉज ये क्या है कि सोचो कि 70% क्लासेस आर गोइंग टू बी इन द ऑफलाइन and 30% is going to be online, maybe vice versa. Is it okay guys to you? तो फाइनली आपको पढ़ना. अच्छा, मेरा आज का क्लास पूरा वर्चुअल है, कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? मेरा वॉइस भी क्लियर है? Yes, मेरे को sir. जो क्वेश्चन Yes, sir. मेरे को जो क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल रहा है. Yes, sir. तो मेरे को अगर दिखना चाहता है भी, मैं कभी कभी मेरा वीडियो भी दिखा दूंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो वीडियो देख सकते हैं. ओके, सो लाइक दिस एवरी टाइम आई एम गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट वरी. सो यहाँ पे मैं भुवनेश्वर में हूँ, थोड़ा अलग जगह में हूँ, मेरे गेस्ट के, मेरे रिलेटिव के घर पे हूँ. That's why you will not get that type of healthy environment in the background. But yes, once I will be in Pune or once I will be in Bhubaneswar, if I am in Bhubaneswar, once our premises is ready, then I will be offline in front of you. If I am in the Pune or if I am anywhere, actually I am moving around the India, especially 4-5 city घूमना पड़ता है कभी कभी. That time if I am at anywhere, I will be in a proper healthy environment, so that every time you are going to see me with a board at least. अभी यहाँ पे बोर्ड नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ. अच्छा, यहाँ पे मजा आ रहा है या बोर्ड में मजा आएगा, आप बताइए? बोर्ड में, राइट? मेरे को तो बोर्ड अच्छा लगता है. yes, यहाँ पे ड्राइंग हो रहा है, मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा. ओके, तो बोर्ड जब मैंने पुणे में रहूंगा वो टाइम में बोर्ड में पढ़ा हूँ. तो देखिए, तो 12 तारीख से लेके 30 तारीख तक, दिसंबर 30 तारीख तक आपको मैंने बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, प्लस यहाँ पे भी ड्राइंग करके पढ़ाऊंगा. एनीवे, यू आर गोइंग टू बी एंगेज्ड एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ask lot of questions, sometimes randomly to all of you, randomly. Okay? So be prepared, don't take it in a silly mode that yes sir कभी नहीं पूछेंगे. सडनली किसी का भी टर्न आ सकता है और मैं भयंकर डांटता हूँ गाइस. हाँ, डरो मत, मेरे को भाई हिसाब से लो, बड़े भाई हिसाब से लो, तुम्हारा फ्रेंडली टीचर के हिसाब से मेरे साथ ट्रीट कर सकते हो. ओके, जो भी क्वेश्चन है मुझे पूछो, बिंदास पूछो, आपको आंसर मिलेगा. जो कि ट्रेनर आपको पढ़ाएगा आपको आंसर मिलेगा. ओके, कभी कभी हम लोग मतलब मैं जो बोला ना कि आपके सामने भी मैंने बोर्ड के जब पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली मेरा फेस ही आएगा, नहीं तो फिर दिखेगा कैसे. यहाँ पे मैंने
ओनली स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, बट बोर्ड में जो पढ़ाऊंगा मेरा फेस, मेरा हाथ, मेरा डस्टर, मेरा पेन सब दिखेगा, ठीक है। तो विल try to avoid the online class, but sometimes it is required, right? So you guys are going to be a DevOps engineer within 5 months. It is your aim, and our aim is to make you a DevOps engineer. बीच में जो कुछ आएगा चलता है, ठीक है। देखो हम लोग इतना खर्च करके रूम तो बनाए इसलिए, बट अगर हमारा सिचुएशन ऐसा है क्या कर सकते हैं, राइट? एवरीबॉडी ओके या नॉट? Okay. Yes, sir. Okay. It's genuine, okay? Yes, sir. Genuine. चले, good night guys. Good night, So sir. video Good will be night, shared. sir. Good night, Video will be sir. shared within Good night, half an sir. hour. Thank you guys. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Good night. Good night.